Alright, in the last class we have learnt about the lenses, the introduction to lenses. In this particular class we are going to learn about lens maker's formula. Lens maker's formula, mind you, one of the most important questions that has been repeatedly asked in your PU syllabus. So I hope it is clear enough. Alright. So previously we have already learnt what do you mean by a lens and how do you draw the ray diagram for a lens. We have already learnt all that. I'll just repeat the assumptions. I had told you that lens is thin and all distances are measured from optic center. The aperture of the lens is small, and then I had told you object is a point object and lies on the principal axis. All the angles made are small. Then regarding the sign convention, with regards to the sign convention, you had learnt all distances taken in the direction of light are taken positive. All distances taken in the opposite direction are taken negative. So with that in mind, let us move forward. In the lens maker's formula, what do we need to do basically? First, we'll be drawing a lens. So this is how your lens looks like. Which lens is this? Convex lens. To be honest, biconvex lens. Let this will be X and Y. Let this be the first pole P1. This be the second pole P2. X P1Y and X P2Y, and along the center you will have the optic center C. Clear? Then what else? This is your principal axis that I have drawn. Let us consider object to be over here. Yes, so if I draw the object over there, this from the center I can take this as distance U. Clear? Then what else can I mention? I can mention outside, let the refractive index be N1, inside the mirror let it be N2. So I'll just write it here, N2. Clear? So that finishes N1 and N2 I have written. Next, from the object let it be incident on the first plane, first refracting surface, and it goes this way. Let the first point be A. Clear? At A, okay, one more thing, this particular lens, this part of the curved surface, for this surface where is the center? It is somewhere over here. And for this part of the curved surface, the center is somewhere over here. So since this is P2, for P2 here it is C2, for P1 here it is C1. Clearly, so from that point I can also mark R1 and R2. This one will be R1, this one will be R2. Now people will get confused, why R1 here, why R2 here, why C1 here and C2 here. Pole P1 is over here, तो इस वाले surface का सर्कल जब बनेगा तो सेंटर इधर आएगा. That's why C1 here. Center to the optic center taken as R1. Second center taken as R2. I hope that much is clear. Next, from rarer to denser, obviously N1 is lesser than N2. Obviously N1 is lesser than N2. Now at this point I can draw a normal. This way. Yes, C1 के हिसाब से. तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे rarer to denser bends towards the normal. तो ये वाली रे थोड़ा इस तरीके से बेंड होगी. ठीक है, इस तरीके से बेंड होगी. तो उसके बाद ये पॉइंट आएगा B. तो इस पॉइंट पे हो क्या रहा है? Here I think it is not visible enough. But what is basically happening? यहाँ पर let me draw it here. So जब ये चीज को zoom in करेंगे, ठीक है, I hope here it will be clear, I guess. zoom in कर लेते हैं. रे ऐसे आ रही है, ए को लग रही है
ए के बाद बेंड होके ऐसे जा रही है, ये बी हो गया, ठीक है। सेकंड सरफेस पे यहाँ पर है, ठीक है, और नॉर्मल कुछ ऐसे जा रहा है, डन, ये ऑब्जेक्ट से आ रहा है, डन। सो दैट इज द जूम्ड इन पोर्शन। तो उसके बाद रेयरर टू डेंसर हो गया, फिर डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ से सेंटर को यहाँ पर डालेंगे क्योंकि सेकंड सरफेस के लिए सेंटर इधर तरफ है, C2 इधर तरफ है, C1 इधर तरफ है, तो यहाँ पर इस तरीके से है नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और बेंड हो जाएगा। तो नाउ इट कम्स समथिंग लाइक दिस। सो दिस विल बी योर इमेज आई दैट इज फॉर्म्ड। क्लियर? अगर यानी यहाँ से और बेंडिंग हो करके ऐसे फॉर्म होगा, ये समझो आपका आई। अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू होती और आई डैश यानी I1 पे फॉर्म होता। यानी ये लाइन अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता तो फिर ये कंटिन्यू हो करके I1 पे फॉर्म होता। आई होप द फिगर इज क्लियर। क्या हो रहा है, लेट मी जस्ट रिपीट। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन इज रियली सिंपल। ऑब्जेक्ट से रे पास हुई OA, पहले सरफेस पे x यहाँ पर कहीं पर P होगा, P1, और Y नीचे आएगा, ठीक है। रेयरर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल था। जो रे यूं जा रही थी ये बेंड हो गई AB की तरफ। AB को जाने के बाद अब यहाँ पर B पे अगेन सरफेस डेंसिटी यानी सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया गया C2 से, ठीक है। अब ये नॉर्मल इस तरीके से जाएगा, ठीक है। रे जो यूं जा रही थी नॉर्मल से दूर हटना पड़ेगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इट गोस दिस वे, ठीक है। जो रे इस तरीके से जा रही थी AB के हिसाब से, अब वो नॉर्मल से हटेगी यानी इस तरीके से हो जाएगी, तो इसलिए बेंडिंग हो करके यहाँ पर जाके आई यहाँ पर फॉर्म हुआ। ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है I1, अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता तो यहाँ पर बेंडिंग नहीं होती और ये कंटिन्यूसली जाकर I1 पे फॉर्म होता। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर्ड। So how will be the explanation for this? Consider an object O placed on the principal axis of a biconvex lens, yeah, whose C is the optic center, and let the refractive index outside the lens be N1 and the refractive index of the lens be N2 such that N1 is lesser than N2. हो गया? A ray from O object is incident on the first surface XP1Y at A. At the point of incidence you are drawing a normal, ठीक है, undergoes refraction along AB and again undergoes refraction and finally an image I is formed on the principal axis, ठीक है। Let U be the object distance, ठीक है। और क्या है, I यहाँ पर है तो यहाँ से I तक V आ जाएगा image distance, ठीक है। V be the image distance. Let R1 and R2 be the radii of curvature for the two curvatures respectively. P1 and P2 are the poles. तो ये आपका बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एल्स कैन वी डू इन दिस, या। तो अभी आपको इस चीज में अब आगे हम क्या करने वाले हैं वो भी यहीं पे बता देता हूँ, उसके बाद आई जस्ट ड्रॉ इट, ठीक है। ये ऐसे ड्रॉ किया था मैंने, ठीक है। ये वाला हिस्सा इसको अलग करेंगे, ठीक है, काट देंगे इसको। दिस लेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। विल टेक फर्स्ट हाफ, विल पुट द फॉर्मूला, विल देन टेक सेकंड हाफ, विल पुट द फॉर्मूला। दिस इज योर फर्स्ट हाफ, दिस इज योर सेकंड हाफ, नॉट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लीज माइंड यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है N1 और यहाँ पर N2। अब इसी लेंस को, जो लेंस आपका ऐसा था उसको आधा काट करके हटा दिया जा रहा है। ये मेरा पहला केस होगा, ये मेरा सेकंड केस होगा, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह वही करेंगे आगे। आई होप दिस इज क्लियर। लेट मी मूव फॉरवर्ड विद दिस। तो स्टेप 1, द फर्स्ट स्टेप, लेट अस फाइंड रिफ्रैक्शन एट सरफेस X P1Y, यानी पहले सरफेस पे करके देखते हैं। तो पहले सरफेस के लिए क्या होगा,
होप इट इज विजिबल। ओके, तो पहले सरफेस के लिए आप प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करोगे। ये आपका पहला सरफेस हुआ, x p1 y, ये आपका ऑप्टिक सेंटर था। समझो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे पास हुई थी, इंसिडेंट एट ए हुआ था, ए से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, सी कौन सा था, ये C1 था ऑब्वियसली पोल का, P1 तो C1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद B कहीं बाहर है, हवा में है, ठीक है, क्योंकि सेकंड हिस्सा हमने काट दिया है। तो अब इट बेंड्स वंस, ऐसे होता था, इसके बाद और बेंडिंग होता था, लेकिन हमने सेकंड हिस्सा निकाल दिया तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू होकर के कहाँ मिलेगा, क्या नाम दिया था हमने उसको, I1 दिया था, ठीक है। तो I1 पे फॉर्म होगा, डन। और फिर एज यूजुअल ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। फिर सेंटर से लेकर यहाँ तक R होगा, ठीक है, क्या है R1 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर इमेज I1, अभी इमेज कौन सा है I1, तो V1 लिखेंगे, ठीक है। I hope you understand. O is object, I1 is the image formed for the first surface, ठीक है। Let me just get back a little bit ताकि आपको फिर से याद दिला दूं कि हुआ क्या था। पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने से I1 पे फॉर्म होगा, सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने के बाद I पे फॉर्म होगा। डॉटेड इसलिए डाला क्योंकि सेकंड सरफेस मौजूद है, असल में फॉर्म होगा I पे। अभी हमने I को हटा दिया, मतलब सेकंड सरफेस हटा दिया, तो हमारा इमेज बनेगा I1। जब सेकंड केस लूंगा तो इमेज I पे फॉर्म होगा। आई होप दैट इज क्लियर। देन इज इट फोकसिंग, ओके नाउ। तो ये आपका हो गया पहला वाला व्हाट फर्स्ट पर्टिकुलर फिगर। ऑब्जेक्ट मिल गया, इमेज मिल गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ओ पे है, इमेज क्या हुआ है I1 पे, ये रियल इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। देन ये केस क्या है, इसमें वी कैन ऑल्सो राइट सेकेंड सरफेस XP2Y इज एब्सेंट, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग XP2Y टू बी एब्सेंट। नाउ अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, दिस इज N1, दिस इज N2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम ऑब्वियसली। इमेज कहाँ पर है, यहाँ पे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तो फिर हमने एक फॉर्मूला सीखा था, UV/NR का जो रिलेशन बनाया था, पहला वाला था जब ऑब्जेक्ट वॉज इन रेयर, पहला वाले का रिलेशन कुछ ऐसा था, -N1/U प्लस N2/V इज इक्वल टू N2 - N1/R। ये था आपका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। लास्ट क्लास आई हैड मेड यू रिटन, सॉरी क्लियर है, हाँ। तो इन द लास्ट क्लास आई हैड मेड यू टू अंडरस्टैंड, एक फॉर्मूला दिया था मैंने, पहला केस एक समझाया था, -N1/U प्लस N2/V इज इक्वल टू N2 - N1/R। सेकेंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, चेंज N1 to N2 बोला था, तो ये पहला केस है, -N1/U प्लस N2/V इक्वल N2 - N1/R। ये जनरल है, इसको अप्लाई करेंगे तो U एज इट इज, V बिकम्स V1 क्योंकि V1 है इमेज यहाँ पे, ठीक है। R बिकम्स R1, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है, वी आर कंसिडरिंग रिफ्रैक्शन एट XP2Y, ठीक है। तो जब सेकेंड केस को कंसिडर करेंगे तो फिर आप डालोगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे। इसको सुकून से सुनना ये वाले वीडियो को, ठीक है। देन आई एम ड्रॉइंग द सेकेंड सरफेस, ठीक है। दिस इज योर X, दिस इज योर P2 एंड दिस इज योर Y, डन। एंड देन दिस इज योर ऑप्टिक सेंटर C, ठीक है। देन अब इस चीज में जब मैं ड्रॉ करना चाहूँ
तो रे शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ के बाद डायरेक्टली यही चीज़ है यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से पहले हिस्से से जब आएगी रे तो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। और उसके बाद इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एंड ये पॉइंट बी होगा, पॉइंट बी का जो है सेंटर C2 इधर आएगा, ठीक है। और उसके बाद रे जो है बेंड हो करके इस तरीके से फॉर्म होगी, इमेज आई यहाँ पर फॉर्म होगा। अगर बेंड नहीं होती तो फिर I1 यहाँ होता। यही था केस, कुछ नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया है। लेट्स शो यू। बेंडिंग होने के बाद आई फॉर्म होता था, I1 इधर था, ठीक है। वही चीज़ को दोबारा लिखा है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सेकंड वाले हिस्से के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट पहले वाले हिस्से के लिए दिखाई देता है, सेकंड वाले हिस्से के लिए ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। सेकंड वाले के लिए सोर्स क्या है, ये वाली रे है जो ए के बाद आ रही है, ठीक है। तो सेम चीज़ आई हैव रिटन डन। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर रे ऐसे ही एक्सटेंड हो जाए, रिफ्रैक्शन नहीं हो तो I1 होगा, रिफ्रैक्शन हो तो I होगा। तो बेसिकली इमेज इज I। ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट क्योंकि इधर नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, इमेज आया इस रे से। तो ये रे, दिस रे विल बिकम, जो ए से आ रही थी रे, दैट विल बी एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सच में वहां पर मौजूद नहीं है, वी विल कंसिडर इट टू बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वो मिलेगा कहाँ पे, मुझे प्रिंसिपल एक्सिस पे चाहिए, तो आई विल जस्ट एक्सटेंड इट, आई विल टेल I1 let it be the virtual object. This is important. I1 acts as virtual object, ठीक है। And image is formed at I। Image is formed at I and I1 acts as virtual object। फिर एक बार दोहरा दूं इसको, क्या किया मैंने यहाँ पे, एक रे पहले वाले हिस्से के, इधर वाले हिस्से के लेंस में से ऐसे एक रे आ रही है, ठीक है। वही इस सरफेस के लिए सोर्स बनेगा। तो सोर्स क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही मैं उसे एक्सटेंड बैकवर्ड करूंगा तो कुछ मिलेगा, तो आई एम एक्सटेंडिंग इट फॉरवर्ड एंड आई एम टेलिंग इट दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने एक्सटेंड किया है, अपने आप से नहीं है, वी विल कॉल इट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है I पे, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इज N2, दिस इज N1, ठीक है। फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट वाज इन रेयर मीडियम, अभी ऑब्जेक्ट लेंस के अंदर से आ रहा है, तो नाउ ऑब्जेक्ट इज इन दिखाई दे रहा है, होप ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, दिस इज क्लियरली केस 2, दिस इज क्लियरली केस 2 वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो केस 2 में मैंने कहा था N1 को N2 से चेंज करो, तो माइनस एज इट इज N1 की जगह N2 बाई U प्लस N1 बाई V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई R। ये आपका जनरल फॉर्मूला, सेकंड केस वाला फॉर्मूला है। इसमें U क्या है इस बार, Y यहां से लेकर I1 तक, ठीक है, वो होता है V1, I का हो जाता है V, ठीक है। N2 बाई U, ऑब्जेक्ट किधर है, इधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस V1 है, तो U की जगह मैं लिखूंगा माइनस N2 बाई V1 प्लस N1 बाई इमेज डिस्टेंस इज V इटसेल्फ इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई R। R कितना होगा, R2 होगा, क्योंकि इधर तरफ आएगा ना, इधर C2 का R2 है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट till here you have come, this is your second equation। कंफ्यूज हो रहा होगा, फिर एक बार बता दूं कैसे आया इक्वेशन। फिगर समझना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ये रे है हमारा ऑब्जेक्ट सोर्स है, एक्सटेंड किया, I1 इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म हुआ I पे, I1 का डिस्टेंस है V1, पहला फिगर चाहे तो चेक कर लें, I1 इज एट डिस्टेंस ऑफ V1, सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा V1, U की जगह V1 लिखा है, इमेज V डिस्टेंस है। When object is in denser medium, second case वाला फॉर्मूला माइनस N2 by U plus N1 by V is equal to N1 minus N2 by R। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है V1, इमेज डिस्टेंस कितना है V, N1 minus N2 by R, R कौन सा है 2, R2। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, क्लियर ना। अभी हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। पहला इक्वेशन क्या लिखा, माइनस N1 by U प्लस N2 by V इज इक्वल टू
n2 माइनस n1 बाय r1। ये आपका पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या है, माइनस n2 बाई v1 प्लस n1 बाई v इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाय r2। तो ये आपके दो इक्वेशंस थे, कुछ नहीं किया है। जो यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं उन्हीं को यहाँ पर लिखा है। यस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सेकंड इक्वेशन को मैं फिर से लिखूंगा एक नए तरीके से, माइनस n2 बाई v1 प्लस n1 बाई v एज इट इज। n1 माइनस n2 बाई r2 की जगह माइनस ऑफ, माइनस कॉमन लूंगा तो n2 माइनस n1 बाई r2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर लिया है बस। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब ये दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, माइनस n1 बाई u एंड n2 बाई v। अच्छा, पहला इक्वेशन में n2 बाई v1 था, चेक कर लो। माइनस n1 बाई u प्लस n2 बाई v1 था, n2 माइनस n1 बाई r1 माइनस n1 बाई n2 बाई v1 प्लस n1 बाई v इक्वल्स n1 माइनस n2 बाई r2। ठीक है, तो सही है। अब ये दो इक्वेशंस में जब ऐड करूंगा, माइनस n2 बाई v1 प्लस n2 बाई v1 विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, डन। व्हाट विल रिमेन, what remains is minus n1 by u plus n1 by v is equal to n2 minus n1 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो बचेगा क्या, पहले 1 by r1 माइनस 1 by r2, ये आपको बचेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, डन। तो अब इसके बाद n1 कॉमन लेंगे। ठीक है, व्हाट विल गेट, माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। ठीक है, इज इक्वल टू n1 बाहर लेंगे, फिर इधर ढक लेंगे, n2 माइनस n1 बाई n1 कर लेंगे, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो n2 बाई n1 माइनस 1 आएगा, minus 1 by r2. People still thinking how this came? Just separate the LCM n2 by n1 minus n1 by n1, n1 n1 cancel, 1 आएगा। ठीक है, तो इधर आ गया माइनस 1 by u प्लस 1 by v। ठीक है, डन। तो यहाँ तक हम आ गए। अभी एक केस है, if object is at infinity, image will be at principal focus। that is, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो, यानी u अगर इन्फिनिटी हो जाए तो v मिलेगा आपको फोकल लेंथ पे। ये आप ये कहाँ सीखेंगे, मैं आपको लेंस, पोजीशन ऑफ लेंसेस, पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फॉर लेंसेस करवाऊंगा आगे, वहाँ मिलेगा आपके लिए। ये तो आपने ऑलरेडी सीखा भी है, जो लेंस हमने पहले ड्रॉ किया था, ऐसे इन्फिनिटी में से रेज आएंगे तो जाकर सीधा प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगा वो। तो वही तो है ये, u is at infinity, distance u is at infinity, v you are getting it at principal focal length, या तो उसी को ड्रॉ किया। देन इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस 1 by u becomes 1 by infinity, yes 1 by infinity plus 1 by v becomes 1 by f is equal to n2 by n1 minus 1 by r1 minus 1 by r2। I hope this is clear। ठीक है, ये हो गया 0, 1 by infinity is 0। So what do you get the final formula, 1 by f, f small f है, capital F नहीं है, focal length है, n2 by n1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। ये हो गया आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या सीखने को मिला, फोकल लेंथ मालूम हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मालूम हो जाए, तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं किस तरीके की लेंस चाहिए, कितने डिस्टेंस के लिए। यही चीज़ इस्तेमाल होती है आपके स्पेक्टेकल्स को बनाने में वगैरह।
ठीक है. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एंड वन मोर थिंग, स्पेशल केस विल बी इफ बाहर वाला जो लेंस हमने लिया था ना, उसके बाहर n1 लिया था, बाहर अगर एब्सोल्यूट है n इक्वल्स n1 इक्वल्स 1 होगा तो फिर ये n2 माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं इसमें. इफ लेंस इज डिप्ड इन वाटर बोल के आएगा, तब n1 बदल जाएगा, n2 बदल जाएगा, उसके हिसाब से फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूशंस होते रहते हैं. आई होप this particular derivation is clear for you guys. We will continue in the upcoming classes. Thank you.